Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Abhishek Tiwari here. Once again, I'm resuming your language section. The last lecture we have studied about the advertisement, its types, okay, and types of classifications, means classified advertisement and marketing scheme, everything that required for advertisement initially before studying it we have discussed in the last lecture. Now students, let us talk about, and also along with it we have also studied the format of situation vacant. Okay, the format of situation vacant type of advertisement. I had also provided you an example of this. Okay, and now let us talk about the situation wanted. Okay students, now let us talk about the situation wanted type of advertisements. Okay, so here we are going to study briefly about the situation wanted type and some other types of advertisement. So within this week we would be able to know different types of advertisements we shall practice all about. So here we are, let us move further, don't waste our time. Okay students, वंस अगेन मैं अभिषेक तिवारी आपका वेलकम करता हूँ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिचुएशन वांटेड टाइप का एडवर्टाइजमेंट. ओके, दिस इज़ द सेकेंड टाइप, सिचुएशन वांटेड, विच आई एम presenting you in front of you. So situation wanted type of advertisements is very similar to the situation vacant. जो situation wanted type के advertisements होते हैं they are also very similar to situation vacant. बस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आपको प्रोवाइड करनी होती है. ओके, वो डिफरेंसेस क्या हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ओके, एन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो. एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया है, आप इसको स्टडी करेंगे सो यू विल बी एबल टू नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, so please watch the example, and I have also written an a solved example of that very example. सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया है कि कैसे उसको लिखते हैं. लाइक द क्वेश्चन इज यू आर A.L. भगत ऑफ C108 शक्ति नगर दिल्ली. You are a chartered accountant and are capable of handling accounts and managing companies' finances, having 6 years of experiences, drafting advertisement for the Times of India, seeking a job full-time, part-time. Okay, full-time or part-time. So this is what the question that has been given here. Right now let's see the solution of it. Okay, कंटेंट्स इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग स्क्वीज कर लेंगे यहाँ से. अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम सिचुएशन वांटेड को लिखेंगे. मतलब जहाँ सिचुएशन वैकेंट में एम्प्लॉयर लिख रहा था एम्प्लॉइज़ की सीकिंग के लिए, एम्प्लॉइज़ की तलाश के लिए एम्प्लॉयर लिख रहा था, हियर यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के लिए एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एम्प्लॉयर की तलाश में हैं. हियर द एम्प्लॉइज़ आर seeking employment or they are seeking employers. Okay, so this is what the basic difference between the situation wanted and vacant. So let's see the example. Okay, question आपने जान लिया, देखते हैं. seeking a full time job as a seeking a full time job as a chartered accountant. यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे आप ऐसे, seeking ना, or required a full-time job as a chartered accountant with a reputed MNCs ना in the vicinity. अब आपने ये बता दिया कि आपकी, ठीक है, अब आप क्वेश्चन को लेकर के आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसको लेकर के कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर आप बताएंगे कि आपकी प्रेफरेंसेस कहाँ पे है. ठीक है, अब आप इसकी प्रेफरेंसेस को बताएंगे इन द MNC इन द विसिनिटी ऑफ न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली के नज़दीक में ही. ओके, क्लोज में ही, नेबर में ही. वेल, अब आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस को बताएंगे. ठीक है, आई एम वेल एक्वेंटेड विथ अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फिनांसेस. ठीक है, ये आपकी
क्या हो गई, क्वालिफ़िकेशंस हो गई। फिर आप अपनी एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ अपने और ना एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस को बताएंगे, ठीक है, कि आई एम वेल वर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ओके, सीकिंग अ गुड पैकेज, हैविंग 6 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब अपना एक्सपीरियंस भी आपने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक। एक्सपीरियंस के बाद अब यहाँ से आप फाइनली इसको बताएंगे कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ कैन कॉन्टैक्ट मी, ना अपना नेम लिखेंगे AL भगत C108 शक्ति नगर दिल्ली, ईमेल एंड वट एवर फ़ोन नंबर एंड ईमेल नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द फॉर्मेट ऑफ सिचुएशन वांटेड, ओके गाइज। सो होप आपको ये सिचुएशन वांटेड समझ में आया होगा। So with watching this example, you have also to create some of advertisement of situation wanted type. Okay guys, now let us move further, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स को टाइप 2, ये टाइप 1 में ही आप इसको पढ़ लेंगे, सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड। Now let us talk about situation type 2 of the advertisement, सेल एंड परचेज टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज को देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग व्हीकल्स के सेल एंड परचेज को देखेंगे। पहले हम लोग प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज को देख ले रहे हैं। नाउ रिक्वायर्स डिटेल्स रिक्वायर्ड। अब इसके लिए कौन कौन सी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के सेल एंड परचेज टाइप के एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए। तो पहले बिगिन विथ सेल, परचेज और अवेलेबल वांटेड, ठीक है। चाहे आप सेल या परचेज या अवेलेबल या वांटेड करके आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर और क्या डिटेल आपको देनी पड़ती है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है। ब्राइफ फिजिकल डिस्क्रिप्शंस देनी पड़ती है, उस प्रॉपर्टी की फिजिकल डिस्क्रिप्शंस आप दीजिए उसमें। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंस ऑफ प्लॉट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ठीक है। अब आप टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में दूसरे सेंस में बताएंगे कि प्लॉट है कि कैसे प्लॉट है, फ्लैट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, ठीक है, किस पर्पस के लिए आप जो है सेल परचेज कर रहे हैं या ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसकी डिटेल देंगे आप। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नेम देंगे आप, ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, ये सब मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ आप इसमें एरिया, लोकेशन और साइज़ ये भी आप मेंशन करना नहीं भूलेंगे कि कितना प्लॉट है, उतना एरिया कितना है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, साइज़ कितनी है प्लॉट की, ठीक है। इसके अलावा जो और भी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज़ आप फ्लैट के बात कर रहे हैं, बंगलो की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे और उसकी पेरिफेरी में कौन सी सुविधाएं आप दे रहे हैं उनके डिटेल्स को भी आप मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल एंड परचेस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ इट। अब हम इसकी फॉर्मेट की बात कर लेते हैं बच्चों कि फॉर्मेट क्या होता है इसका, ठीक है। अब इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो फॉर्मेट होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आप इस चीज़ को देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, ओके। तो पहला है सेल, ओके। अब इसका फॉर्मेट अगर हम देखें, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप कुछ बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो आप सेल लिखेंगे, आप कुछ ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ लिखेंगे, ठीक है। सेल एंड परचेज़ हो गया, ठीक। अब इसके बारे में डिटेल देंगे। सपोज़ आप एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, आप एक फ्लैट सेल कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 2 BHK फ्लैट, ओके। क्या लिखेंगे, 2 BHK फ्लैट 1180 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये आप इसका टाइटल हो गया, इसके टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, इसके बारे में आपने डिटेल दे दिया। एट 7th फ्लोर, कवर्ड कार पार्किंग, ठीक है, 7th कवर्ड कार पार्किंग हो गया, ईस्ट फेसिंग है ना, एंड आनंद विहार ये लोकेलिटी है, एड्रेस इसका ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये और ईमेल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके डिटेल्स को दे सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट में। अब नो क्वेश्चन इज़ कि लिखना कैसे होता है, उसको भी हम लोग सेल में देख लेते हैं, सेल का एग्जाम्पल कैसे होता है। सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल। यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड किया है, आप क्वेश्चन को पहले सुनिए, फिर उसके बाद आप कैसे इसको
प्रैक्टिस करते हैं उसको देखेंगे। सो मारिया एग्नेस, ठीक है, ये नेम है हाउस ओनर का, हाउस नंबर यहाँ दिया है, मापुसा गोवा, विशेस टू सेल हर हाउस बंगलो एज शी इज़ माइग्रेटिंग टू यूएसए। वो अपना घर बेचना चाहती क्योंकि वो माइग्रेट हो रही हैं यूएसए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर हर फॉर पब्लिकेशन इन द फॉर सेल प्रॉपर्टी और फॉर प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, फॉर सेल या प्रॉपर्टी सेक्शन जो न्यूज़पेपर का है उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए, इसको लेकर के वो अपना एक घर बेचना चाहती हैं जो कि एक बंगलो है। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ये इसका हो गया सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, लिखेंगे हाउस फॉर सेल, बंगलो फॉर सेल वॉट एवर, एट मापुसा जो प्लेस का नाम है गोवा, हाउस नंबर 196 अ बंगलो फॉर सेल। ठीक है, विथ 2 बेडरूम्स। अब इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में, यहाँ तो आपने इसके बारे में बता दिया कि कहाँ पे है वो, उसका एड्रेस क्या है, लोकेलिटीज़ क्या है। अब उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे कि 2 बेडरूम्स 2 फ्लोर्स विथ मॉडर्न पार्किंग। ठीक है, मॉडर्न पार्किंग सिस्टम है वहाँ पे, एंड अ बिग लॉन, और एक बड़ा सा लॉन है अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट। ओके, सामने की तरफ एक लॉन है, क्लोज टू मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट के एकदम नज़दीक में है, ईस्ट फेसिंग, पूरब की तरफ मुंह है घर का। प्राइस रीजनेबल, आपने प्राइस मेंशन नहीं किया है, आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सो प्राइस रीजनेबल मतलब कि सही प्राइस होगा, वो कांटेक्ट करने पे मालूम होगा। ठीक है, तो आप इसके बाद कांटेक्ट नंबर लिख दिए हैं, मारिया एग्नेस, अपना कांटेक्ट लिखेंगे, अपना नेम लिख करके, और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, एक डमी मोबाइल नंबर्स आप प्रोवाइड ऐसे कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट द वे फॉर राइटिंग अ हाउस फॉर सेल। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, यहाँ पे अभी और भी, ऐसा नहीं है कि सीमित हो गया, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक घर को लेकर के बेचने के सेंस में आप उसके बारे में डिटेल दे सकते हैं, जैसे बिग लॉन अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ द इन फ्रंट, इसके अलावा वेल वेंटिलेटेड, ओके, एंड एयरी, वेल वेंटिलेटेड एंड एयरी आप ऐड कर सकते हैं, हवादार है बहुत ही। ठीक है, इसके अलावा जो है आप वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी डिटेल्स आपको देनी है आस पड़ोस की तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं किसी हाउस को बेचने के लिए, बंगलोज को बेचने के लिए। ठीक है, ये हाउस फॉर सेल हो गया ना, कि आप खुद ओनर होकर के अपना घर सेल करने के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल इससे जुड़ा हुआ आपको यहाँ नीचे मिल रहा है, जहाँ पे आप एक ओनर नहीं हैं घर के, आपको घर खरीदने की ज़रूरत है, आप घर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या हैं, यू आर द हाउस सीकर एंड यू राइट फॉर एन अप्रोप्रिएट हाउस। आप एक अच्छे घर के लिए एक आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे कि आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी, हाउस वांटेड। ठीक है, हाउस वांटेड मतलब घर की तलाश है। अब इस तरह से आप लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, लेट अस हैव अ लुक। वांटेड अ स्ट्रीट फेसिंग हाउस, सीधा आप लिखेंगे वांटेड ना, रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्ड अ स्ट्रीट फेसिंग हाउस फॉर रेजिडेंशियल कम कमर्शियल मतलब क्लिनिक पर्पस। ठीक है, कमर्शियल एंड क्लिनिक पर्पज़, आपको वहाँ पे घर में रहना भी है और क्लिनिक भी खोलना है। एट गुड़गांव, एड्रेस आपने प्रायोरिटी दे दी गुड़गांव में। और आपको फैसिलिटीज़ क्या चाहिए, अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड वाटर एंड पावर सप्लाई इज़ मस्ट मतलब ये अनिवार्य है, वहाँ होना चाहिए। नियर मार्केट, नज़दीक में बाज़ार होना चाहिए। एंड अदर फैसिलिटीज़ विल बी प्रेफर्ड ना, और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ की प्रेफरेंस होगी, मतलब मैं घर खरीदूँगा या ख़रीदूँगी तो उसमें मैं प्रेफरेंस जो है फैसिलिटीज़ को दूंगा ना। ओनर्स विथ रीजनेबल प्राइस, अब आपने लिख दिया कि जो ओनर्स इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड ओनर्स विथ रीजनेबल प्राइस
ना, जिनकी कीमत अच्छी खास ठीक ठाक कीमत है उनके घर की, कैन कॉन्टैक्ट मी, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपना आप नेम एंड डिटेल दे देंगे कि डॉक्टर गीतांजलि एमडी, मोबाइल नंबर दिस, ईमेल दैट, ठीक है। तो दिस दैट करके आपने पूरे डिटेल्स आपने दे दिए कि आपको एक घर चाहिए, तो ये उसकी डिटेल्स हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द सेल एंड परचेज टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज को स्टडी किया है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और एडवर्टाइजमेंट के पार्ट्स को लेकर। टिल देन हैव अ गुड डे, यू एंजॉय योरसेल्फ।